الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم معبودين صلى الله في كل موجود مقتدي دائرته صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المبتدئين المظلومين ولعنة الله إلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إياك نعبد وإياك نستعين. سلام حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم، میرے لیے یہ مقام تفاخر ہے، افتخار ہے کہ مجھے نشان کئی مجلس جو ہمارے بھائی اللہ سے ایکسپیرینس کیا ہے، میرا کوئی مولانا امین شاہ اس مجمع بشر میں سارے شاداب اور میری اولاد میں دیکھ رہا ہوں تو کیونکہ میرا جو یہاں قیام کا سلسلہ ہے، اس سلسلے کی پہلی مجلس اس کی میں نے قرآن مجید کی پہلی صورت کی آیت کی تلاوت کی سبق حاصل کیا ہے۔ صلوات علی محمد برکت کے اور یہ سورہ مبارکہ آغاز قرآن بھی ہے، افتتاح قرآن بھی ہے، اور اس سورہ کی خصوصیت، امتیاز اور اس کا شرف یہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی عبادت اور شریعت کا سب سے بڑا رکن نماز اس سورہ حمد کی تلاوت کے بغیر مکمل ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں پوری نماز میں، یا سورہ حمد ہے یا آل محمد کے درود ہے، کہ اگر یہ نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل نہیں۔ صلوات علی محمد اس لیے اس سورہ حمد کو عزیزان محترم سورہ حمد بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ افتتاح قرآن کا سبب بھی ہے، آغاز قرآن کا سبب بھی ہے۔ اس سورہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، اسے سب من المثانی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ سورہ جو دو مرتبہ نازل ہوا، آپ کو پانچ طرح پہ چیزیں ہیں، وہ سورت مسلمانوں کی متفقہ طور پر مسلمانوں کی ہوتی ہے، یہ وہ سورہ ہے، یہ سورہ فاتحہ بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، یعنی پوری کتاب کی، پورے قرآن کی صورتوں کی ماں بھی ہے،
یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ابتدا سے مساحت کو اپنا ساتھ دیتے رہیں گے. تو ذرا سے ابتدا میں کچھ مشکل سا مرحلہ ہے اس سورے کو سمجھنے کا، اور وہ یہ سبب میں آج کی مجلس میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں کسی نے آج تک غور نہیں کیا کہ یہ اس سورے کو پروردگار عالم نے 2 مرتبہ کیوں نہ دی، جبکہ 114 صورتیں جو قرآن مجید میں ہیں اس میں سوائے اس صورت باقی ساری صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی. دوسری مرتبہ کسی آیت کے نازل ہونے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب اللہ یہ کہتے کہ سنت دیو کا بنا کرتا تو ہم تو تجھے پڑھا لیتے ہیں تو تم اسے بھولتا نہیں ہے. یہ نبی کی شان ہے، یہ عظمت ذہن پیغمبر ہے، یہ ذہانت پیغمبر ہے کہ جو ہم تجھے پڑھائیں گے تو تو کبھی نہیں بھولے گا. اب یہ عجیب بات ہے، قرآن تو یہ کہے کہ نبی کبھی بھولتا نہیں ہے، حدیث یہ کہے کہ نبی سے بھول بھی ہو جاتی ہے. صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد. اب سنقرئو کا دیکھیں، بڑے دونوں لفظوں پہ آپ غور کریں. سنقرئو کا جو ہم تجھے پڑھائیں، یہ نہیں کہ جو جبریل تجھے پڑھائے، جو ہم خود تجھے، جبریل کی مجال نہیں ہے کہ وہ نبی کو پڑھائے. جبریل کے بالوں پر جل جائیں اگر وہ نبی کو پڑھانے کا تصور بھی لائے. جبریل پڑھا ہی نہیں سکتا. جبریل تو خود اس کے دروازے پر آ کر شاگردی کرنے پر افتخار محسوس کرتا ہے جسے نبی نے پڑھا کر علی بنا دیا. جو ہے نا اللہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے یہاں بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. ہمارے یہاں قرآن پر بھی اگر ایمان ہے تو وہ علم کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، عدل کی روشنی میں. عزیزان محترم، جبریل تو بہت دور کی بات ہے. ہمارا ایمان قرآن پر ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان، قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان، قرآن کی ایک ایک سورت پر ہمارا ایمان. اور اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے جو موجودہ قرآن ہے، خواہ وہ کسی مسجد میں ہو، کسی کتب خانے میں ہو، کسی مدرسے میں رکھا ہوا ہو، کسی شہر میں ہو، یہی قرآن ہمارا ہے. اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے. اور آپ اگر توجہ فرمائیں، اور یقیناً توجہ فرمائیں گے تو ذرا بہت باریک سے جملہ ہے لیکن میں آپ کی ذہانت کے پیش نظر اسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ایمان بالقرآن یہ ہے. اس پر میں انشاءاللہ مسلسل گفتگو کروں گا جہاں بھی مجھے مسلسل گفتگو کرنے کا موقع ملا، کیونکہ یہ ایک تقریر کا مضمون نہیں ہے. لیکن ایک جملہ ضرور عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کے متعلق ہمارا ایمان متفقہ یہ ہے کہ جو کچھ موجودہ قرآن میں موجود ہے وہ غیر قرآن نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا، اس کو سمجھنا تو ہے نا. جو کچھ موجودہ قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک ہے یہی قرآن ہے. اس سے باہر جو کچھ ہے وہ قرآن نہیں ہے. توجہ جانا محترم، غور فرمائے. اب آپ جو صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر، جو میں جملہ اس کا جو کچھ موجودہ قرآن میں ہے عزیزان محترم یہی قرآن ہے. ہمارا اس موجودہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس قرآن پر ہمارا ایمان ہے. اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے. اس قرآن سے جو کچھ باہر ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اور اس پر ایمان رکھنا نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب. اس قرآن پر ایمان رکھنا ہے. جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، الحمد سے لے کر والناس تک، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن ہے. لیکن ہمارا قرآن کی آیتوں پر ایمان ہے کہ یہ آیتیں قرآن ہیں. قرآن کی آیتیں قرآن ہیں، آیتوں کا ترجمہ قرآن نہیں ہے. توجہ جانا محترم، یہ بات ذہن میں رہے. آیتوں کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، آیتوں کی تفسیر قرآن نہیں ہے، آیتوں کی تعویل قرآن نہیں ہے، آیتوں کا مفہوم جو آپ بیان کرتے ہیں وہ قرآن نہیں ہے. اس لیے کہ آیت اور ہے، ترجمہ اور ہے. آیت اللہ کا کلام ہے، ترجمہ بندے کا کلام ہے. تو ہم بندے کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا کسی زبان میں بھی ترجمہ کیا جائے حق ترجمہ ادا ہی نہیں کیا جا سکتا، مفہوم عبارت ادا ہی نہیں. صلوات میں دینا محمد.
अल्लाह आपको सलामत रखे। ईमान बिल कुरान का जो मफहूम है अज़ीज़ान मुहतरम, वो सिर्फ ये है कि ये जो कुछ कुरान में मौजूद है ये मुकम्मल कुरान, ये कुरान से बाहर कोई शय कुरान नहीं है। और इस कुरान का जो इफ्तिताह हुआ है, जो आगाज हुआ है मौजूदा कुरान का, हमें इस पर भी इख्तलाफ नहीं है। बड़ी तवज्जो, एक अच्छी सी बात कह रहा हूँ। इफ्तिताह जिस सूरत से इस कुरान का हुआ है, हमें तरतीब के एतबार से इस पर भी इख्तलाफ नहीं। बाकी आयतों में हमें तरतीब पर इख्तलाफ है कि मक्की मदनी में आ गए, मदनी मक्के में आ गए, सूरतें और आयतें इधर से उधर हो गई हैं, लेकिन आयतें मौजूद तो हैं, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। चाहे मक्की आयतों को आप मदनी लिख दें, मदनी आयतों को मक्की लिख दें, जाहिर है कि ये कुरान कमेटी वालों की बेचारों की पैदाइशी मजबूरी है। उन्हें क्या पता कि कब आयत मक्के में नाजिल हुई, कब आयत मदीने में नाजिल हुई। उन्हें तो जो कुछ मिलता रहा वो दयानतदारी से जमा करते रहे। तहकीक की न उन्हें जरूरत थी, न वो उसके अहल थे। अब जो है ना सलवात मोहम्मद आयमा, अब एक जुमला गवर्नमेंट ने जो कुरान कमेटी बनाई थी अज़ीज़ान मोहतरम, उस कुरान कमेटी की इल्मी काबिलियत अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन जाहिर है कि उस कुरान कमेटी के जो चेयरमैन थे ज़ैद बिन साबित, वो इतनी बुलंद पाया इल्मी शख्सियत नहीं थे, न सिनो साल के एतबार से न इल्म के एतबार से, कि वो ये शऊर कर सके कि ये मक्की आयत है, ये मदनी आयत है। वरना शिबली नामानी के बगैर बकौल उन्हें ये न कहना पड़ता कि जिसे जिसे कुरान की जो आयत याद है वो आयत भी लेकर आए, साथ में दो गवाह भी लेकर आए जो तस्दीक करें कि ये कुरान की आयत ही है, अरबी का कोई और जुमला नहीं है। दो गवाहों का तलब करना, जहाँ एक तरफ उनकी दयानतदारी का ऐलान करता है, वहाँ दूसरी तरफ उनके इल्म कुरान का भी ऐलान करता है कि उनका इल्म कुरान इतना भी नहीं था कि गवाहों की गवाही के बगैर वो तमीज भी कर सके कि ये अरब के किसी बद्दू का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। हुजूर जरा गौर फरमाया। अच्छा, एक रात से और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि आप माशाल्लाह आमादा हैं और इस मुतवज्जे हैं और इज्जत अफजाई फरमा रहे हैं, इसलिए एक वजाहत और करते चले आगाज में। अज़ीज़ान मुहतरम, कभी कभी हम सोचते भी हैं, गौर भी करते हैं कि अली की मौजूदगी में किसी कमेटी के बनाने की क्या जरूरत है। मसला कुरान का था, हुकूमत का तो था नहीं। हुकूमत तो जैसे जो बनना बनाना थी वो बन चुकी थी, वो मसला तो था नहीं। अली ने कुरान जमा कर दिया था ना तरतीब के मुताबिक, तंसील के मुताबिक तरतीब दे दिया था। तो आखिर उसी कुरान को अगर कबूल कर लिया जाता तो उसमें आज एक अजीब सी बात कहूँगा दोस्तों, अगर आपने गौर फरमा लिया, पूरी मजलिस का भाषण ये है, उसमें हर्ज क्या था, नुकसान क्या था। उस तंसील के मुताबिक तरतीब शुदा कुरान को आखिर हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने तस्लीम तो नहीं किया। कुरान ही तो था, यही तो था जो आज है, जो आज है यही कुरान था जो अली ने पेश किया था कि ये हमने तंजील के मुताबिक तरतीब दे दिया है, तुम इसे अपनी गवर्नमेंट में राइज कर दो और सारे बिलाद इस्लामिया में कुरान के नुस्खे पहुंचा दो। इसलिए कि ये हम जानते हैं कि कौन सी आयत कब कहाँ क्यों किसके लिए किस किस पसमंजर में नाजिल हुई है। गवर्नमेंट ने कहा ना, ये नामंजूर है, ये हम कबूल नहीं करते। बात अब समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इसमें क्या हर्ज था। इसमें कोई हुकूमत का मुतालबा तो था नहीं, इसमें अली कोई कुर्सी इख्तियार तो चाहते नहीं थे। अली तो कुरान पेश कर रहे थे ना कि जिस तरह नाजिल हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, क्यों कबूल नहीं किया लोगों ने? बात अब समझ में आई, इसको कबूल नहीं करना चाहिए था। अगर अली सिर्फ ये कहते ना कि ये कुरान की आयतें मैंने तंजील के मुताबिक
तरतीब दे दी है। मुझे पता है कि मक्की आयतें कितनी है, मदनी आयतें कितनी है, मक्की सूरतें कितनी है, मदनी सूरतें कितनी है, सब कबूल कर लेते। अगर अली कहते मैं जानता हूँ मुहकम कितनी है, सब मान लेते। अगर अली कहते मैं जानता हूँ कि मुतशाबे आयतें कितनी है, सब तस्लीम कर लेते। अगर अली कहते नासिख कितनी है, सब मान लेते। अगर अली कहते मंसूख कितनी है, सब मान लेते। अगर अली कहते इजमाली आयतें कितनी है, सब मान लेते। अगर अली कहते तफसीली आयतें कितनी है, सब मान लेते। अगर अली कहते सवालिया आयतें कितनी है, सब मान लेते। अगर अली कहते जवाबी आयतें कितनी है, सब तस्लीम कर लेते। अगर अली कहते कि ये आयतें इस तरतीब से नाजिल हुई, ये बर में नाजिल हुई, ये बहर में नाजिल हुई, ये मक्के में नाजिल हुई, ये मदीने में नाजिल हुई, ये मस्जिद में नाजिल हुई, ये मिंबर पे नाजिल हुई, ये हुजरे में नाजिल हुई, ये जंग में नाजिल हुई, ये मैदान में नाजिल हुई, ये बिस्तर पर नाजिल हुई, ये नमाज में नाजिल हुई, ये कयाम में नाजिल हुई, ये कऊद में नाजिल हुई, ये सजूद में नाजिल हुई, ये सब के सब तस्लीम कर लेते। मगर दोस्तों आपकी जहानत का इम्तहान है। मसला ये हो गया कि अली ने सिर्फ यही नहीं कहा कि ये कुरान मैंने तंजील के मुताबिक तरतीब दे दिया है, इसलिए कि आधा सिफतुल इल्म, आधा लौब रसूलुल्लाह, आधा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, इसलिए कि मेरा सीना उलूम इल्म ही का गंजीला है, ये लौब पैगंबर चूसने का असर है। उन्होंने मुझे ऐसे भराया जैसे तायर अपने बच्चे को भराता है। मैं जानता हूँ कि कौन सी आयत कब कहाँ क्यों किस किस के लिए नाज़िल हुई है। ये पहले सारे जुमले हुकूमत ने कबूल कर लिए होते अगर अली आखिरी जुमला न कहते। अली के कुरान को मुस्तरद ही इस जुमले पर किया गया कि अली ने साथ में ये भी कह दिया था कि मैंने ये भी लिख दिया है कि कौन सी आयत किसके लिए आई है। मसला सिर्फ इतना है। माशाअल्लाह तारीखी नारा बाहर तक खड़े हुए दोनों हाथ बुलंद कर। जुमला जो कह दिया था ना कि मैंने ये भी लिख दिया है, अब आप इस लिखने में गौर नहीं करना है। सारा झगड़ा ये है जो लोगों की आज तक समझ में नहीं आया। लिख दिया क्या मतलब? क्या मादल्ला अली ने कुरान में कोई कमी बेशी कर दी है? नहीं, लिख दिया से मतलब ये है कि 30 पारे थे और 10 पारे बने उस तफसीर के जो अली ने की आयतों की, जिसमें बताया गया कि आयतों का शान नुज़ूल क्या है, जिसमें समझाया गया कि कौन सी आयत किसके लिए नाजिल हुई है, कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई है। ये जो 40 कुरान का प्रोपेगेंडा है ना, ये इसीलिए तो है। तवज्जो, सलावत भेजें मोहम्मद आले मोहम्मद का। ये तफसीर तकरीबन 10 पारों की जाकर बनती। सलावत भेजें आप, तो मैं अर्ज करता हूँ। अब आप गौर फरमाएं, ये सारा वरना तो आप हमारे किसी मस्जिद में चले जाएं, किसी बारगाह में चले जाएं, हमारा कुरान उठाकर देख लें, यही 30 पारे हैं दोस्तों। ना 29 है ना 31 है। हमारे तो इमाम ना 12 के अलावा 11 है, ना 14 है, न 13 है। हमारे तो ना इमाम बदलते हैं ना कुरान बदल। सलावत भेजे ना मोहम्मद। तरतीब भी नहीं बदलती, तादाद भी नहीं बदलती, तरतीब भी नहीं बदलती, तादाद भी नहीं बदलती, हिफ्ज़ मरातिब भी तब्दील नहीं होते। आइए एक मसले पर गौर करते चले कि ये कुरान जिसका आगाज सूरह वाज़िहा से होता है, सूरह फातिहा से होता है, मुझे सिर्फ अहले इल्म से, कारियान कुरान से, हाफिजान कुरान से, मुफ्तियान दीन मतीन से मसला सिर्फ ये पूछना है कि अली की मौजूदगी में, बाब इल्म की मौजूदगी में, अल्लाह बहुत तवज्जो है। लेकिन अब कुछ राजों से पर्दा उठता जा रहा है, इसलिए कि फितरतन आदी हैं, दरवाजे का इतराफ बहुत देर से करते हैं। आप उन्हें गौर ही नहीं किया जुमले। फितरतन आती है, दरवाजे का बाप का इतराफ बहुत देर से करते हैं। देखा नहीं आपने 45 मुल्क को बने हुए 45 बरस गुजर रहे हैं, अब बाप पाकिस्तान बनाया गया है।
बाब पाकिस्तान बनाया गया है और अक्ल के इतने यानी मुल्क को बने हुए 45 बरस गुजर गए हैं, अब बाबे पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है। मुल्क बन भी चुका, बाब अब रखा जा रहा है, दरवाजे की बुनियाद अब रखी जा रही है। अजीब दीवाने लोग हैं, जब एक दीवार गिर भी चुकी अब दरवाजा लगा रहे हैं। समझो, अंदाजा करें, मैं जुमला कह गया हूँ, कौन देखे जा रहा हूँ। जब एक पूरी दीवार मुल्क की गिर भी चुकी, उसे गिरे हुए भी 20 बरस हो गए, दीवार गिर चुकी, दरवाजा लगा रहे हैं। भाई जिस घर की दीवार ही नहीं है उस पर दरवाजा कौन लगाएगा? जो है ना, अंदाजा फरमाइए। मुल्क को बने हुए हो गया इतना अरसा, अब ख्याल आया बाबे पाकिस्तान बनाएंगे, जश्न मनाएंगे, मनाते रहो, जश्न मनाएंगे यौम आजादी का। तुम बनो जाकर के, तुम्हें जश्न मनाने का हक है, तुम्हें तो यौम निदामत मनाना चाहिए 14 अगस्त को जाकर, अल्लामा इकबाल के मज़ार पर और कायदे आज़म के मज़ार पर जाकर माफिया मांगो अपने गुनाहों की। जिसे देखो रेडियो पे, टेलीविजन पे, अखबार में, जो जाहिल आदमी है, ये कायदे आज़म का पाकिस्तान, ये कायदे आज़म का पाकिस्तान। और दीवानों, जो पाकिस्तान कायदे आज़म देकर गया था वो पाकिस्तान है कहाँ? तवज्जो है ना जान मोहतरम, जब वो पाकिस्तान ही नहीं रहा तो जश्न कैसा? यौम एहतसाब मनाओ, सलात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद साहब। मैं इस पर फिर कभी गुफ्तगू करूंगा, फिर कभी मैं इंशाल्लाह तफसील से इस पर गुफ्तगू करूंगा। यहाँ से भी इशारा ये करना चाह रहा था जान मोहतरम कि ये बहुत देर से दरवाजे की तरफ आते हैं। जब पाकिस्तान का दरवाजा इन्हें 45 बरस के बाद नजर आया है, तो शहर इल्म रिसालत का दरवाजा, अल्लाह अल्लाह मैं कहना से सलावत भेजे आप, शहर इल्म रिसालत। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो शहर इल्म रिसालत का दरवाजा ऐज़ान मोहतरम वो इतनी आसानी से कैसे नजर आ जाएगा? तो आखिर इस कुरान को जब पैगंबर इस्लाम ने पूरी तवज्जो ऐज़ान मोहतरम जैसे जैसे नाजिल होता रहा, पैगंबर इस्लाम इस कुरान को सारी मिल्लत पर तिलावत करते रहे। और एक बात और ज़हन में रखें, सूरह मुबारक जुमा, आज के दिन यही तिलावत करते हैं ना, यही सूरह जुमा है जिसकी तिलावत करते हैं। यत्लू अलैहिम आयातिही। कौन है ये रसूल? ये रसूल कौन है? जो उन उम्मीजीन पर आयात की तिलावत करता है। यानी तिलावत अनपढ़ों पर की जा सकती है, और उसके बाद क्या करता है? वयुज़क्की है, फिर उन्हें पाक करता है। पाक करने से पहले तिलावत कर देता है। इस फर्क को अगर आप समझ गए और मैं समझा सका तो मकसद पूरा हो जाएगा। तो आयत की तरतीब देखो, यत्लू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तीन बातें हैं। आयात की तिलावत करके उन्हें पाक करता है, और जब वो पाक हो जाते हैं तब उन्हें इल्म किताब देता है। मालूम यह हुआ कि तिलावत कुरान और है, इल्म किताब और है। तिलावत कुरान नापाक पर भी की जा सकती है, लेकिन इल्म किताब किसी नापाक को नहीं दिया जा सकता। तवज्जो है ना जान मोहतरम? सलावत देने बाबा से बना इल्म किताब। अब जरा सा ये इल्मी मयार है आपको समझना। इसलिए कि तिलावत कलाम के लिए खुदा ने ये नहीं कहा कि वो पहले, ये नहीं है कि पहले पैगंबर उन्हें पाक करता है, उसके बाद कुरान की उन पर तिलावत करता है, फिर उन्हें हिकमत का दर्स देता है। नहीं, पहले तिलावत कर देता है हर अरब के बदलू पर, और जब वो तिलावत सुन लेता है फिर उनके नुफूस को पाक करता है, और फिर जिनका नफ्स पाक हो जाता है उन्हें किताब और हिकमत का इल्म अता करता है। तो किसी नापाक को न किताब दी जाएगी न हिकमत। मालूम यह हुआ तिलावत किताब और बात है, इल्म किताब और बात है।
इसीलिए खुदावंद आलम ने ये नहीं कहा सूरह मुबारक के रात की 40वीं आयत में कि यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे हबीब काफिर ये कहते हैं कि तू मुरसल नहीं है, अगर ये तुझे रसूल नहीं मानते तो न माने। इनसे कहते कि मेरी नबूवत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है, एक वो काफी है जिसे हमने इल्म किताब दिया। इल्म किताब, सलावत दे देना, इल्म किताब। आपने तवज्जो नहीं फरमाया, फिर गौर फरमाने थोड़ा सा देखें। मौलाना अशरफ अली थानवी से लेकर डिप्टी नज़ीर अहमद तक और वहाँ से लेकर मौलाना मौदूदी तक, वहाँ से लेकर मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी तक, आप हर मुतरज्जिमे कुरान और मुफस्सिर कुरान का तर्जुमा और तफसीर उठाकर देख जाएं, इस आयत का सबने तर्जुमा यही किया है कि कुल, इनसे कह दे कफा बिल्लाह, अल्लाह काफी है मेरी गवाही के लिए, और एक वो गवाह काफी है जिसे हमने कुल्ले किताब का इल्म अता किया, जिसे हमने मुकम्मल किताब का इल्म दे दिया। देंगे नहीं, इल्म किताब दिया, इल्म किताब। तिलावत किताब का हक नहीं, तिलावत तो नापाक भी कर सकता है, लेकिन इल्म किताब किसी नापाक को नहीं दिया जाता। सलावत भेजना मोहम्मद आलम। अब आप गौर फरमाएं, जिसे हमने, जो मैं जुमला कहने जा रहा हूं उस जुमले पर आपका मुझे फरमा लें, जिसे हमने मुकम्मल किताब का इल्म अता फरमा दिया। तो दोस्तों, रिसालत का गवाह, नबूवत का गवाह वो है जिसे सारी की सारी किताब का इल्म अल्लाह ने अता कर दिया। आयत अपनी तरतीब के एतबार से कुरान जमा करने वालों की कम इल्मी की वजह से किसी भी सूरत में कहीं भी रखी हो, लेकिन आयत का मिजाज और उसके तेवर बता रहे हैं कि इब्तदाए बेसत की आयत है, आगाज बेसत की आयत है। जब लोग रसूल को रसूल नहीं मान रहे थे तो अल्लाह ने इत्मीनान नाज़िल किया अपने हबीब के क़ल्ब पर। मेरे हबीब, अगर ये तुझे रसूल नहीं मानते तो ना माने, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए एक अल्लाह काफ़ी है और एक वो काफ़ी है जिसे हमने मुकम्मल किताब का इल्म अता किया। तो पता चल गया कि अभी इब्तदाए रिसालत की ये आयत है, अभी आयतों को 22 बरस तक नाजिल होना है, अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, लेकिन खुदा कह रहा है कि मोहम्मद का गवाह वो अली है कि जिसे हमने कुरान नाजिल होने से पहले इल्म कुरान दे दिया है, इल्म कुरान अता कर दिया है, इल्म कुरान दे दिया है, इल्म कुरान अता कर दिया है। अब उम्मती और मुसलमान और मुत्तकी और परहेजगार का मुकाबला अली से न किया करो। सहाबाए किराम की मंजिलें अपनी जगह, उनकी अजमतें अपनी जगह, हमारी जाने निसार रसूल के मुखलिस सहाबा पर, रसूल के वफादार सहाबा पर, रसूल के इताअत गुज़ार सहाबा पर, मगर अली से उनका मुकाबला न किया करो, इसलिए कि सहाबी उसे कहते हैं जो 40 बरस के बाद रसूल से कुरान सुनकर ईमान लाया हो। अली उसे कहते हैं जो आगोश रिसालत में रसूल को कुरान सुनाकर वारिसे किताब बना। फर्क देखे, फर्क है ना ऐसा मुहतरम। लोग मुसलमान हुए रसूल से कुरान सुनकर, अली ने अपने इल्म का ऐलान किया रसूल को कुरान सुनाकर। फर्क तो देखें आप। लोग मुसलमान हुए रसूलुल्लाह से कुरान सुनकर और बकदरे सर्फ मुसलमान होते गए, हालांकि सुनाने वाला एक ही था। किसी पर पहले दिन असर हो गया, किसी पर सारी उम्र असर नहीं हुआ। सलावत में देना मोहम्मद आले मोहम्मद का जुमला कह जो फरमाया ना जान होता है। लोग मुसलमान हुए हैं बकदरे सर्फ, सुनाने वाला एक ही है। लोग मुसलमान हुए हैं बकदरे सर्फ, हालांकि मुअल्लिम एक, मुतकल्लिम एक,
कुरान एक नबी की जबान पर जारी और नबी भी आदिल। ऐसा नहीं है कि सलमान को कोई अलहदा से ट्यूशन देते थे। रिसालत के खिलाफ है, ये अदल रिसालत के खिलाफ है, ये अदल मासूम के खिलाफ है। अबू जर को अलहदा से पढ़ाते थे, ऐसा नहीं था। अब्र रहमत था, इल्म की बारिश थी, पूरी महफिल में एक साथ होती थी, बकदर ज़र्फ उस पर असर होता था। कोई पहले ही दिन लबे रिसालत से कुरान सुनकर मुसलमान हो गया, कोई दूसरे दिन मुसलमान हुआ, कोई पहले महीने मुसलमान हुआ, कोई दूसरे महीने मुसलमान हुआ, कोई 10वें महीने मुसलमान हुआ, कोई 1 बरस के बाद मुसलमान हुआ। रसूल आयात की तिलावत करते रहे, कोई 2 बरस के बाद हुआ, कोई 5 बरस के बाद हुआ, कोई 7 बरस के। सुनाने वाला तो नहीं बदला ना, सुनाने वाला तो वही था, लेकिन इसी कुरान ने असर तो बकदरे ज़र्फ किया ना भाई। जो पहले दिन ही पैगंबर इस्लाम से कुरान सुनकर ईमान ले आया था, उसका ज़र्फ और होगा। और जो 7वें बरस भी पैगंबर से सुनकर ईमान लाने पर आमादा नहीं है, बल्कि दूसरे जरिए से भी अगर सुना है तो कुरान ही सुना है ना। तवज्जो फरमा लें जरा सा। मैं जिस तरह इशारा करा, दूसरे जरिए से अगर कुरान सुना है अज़ीज़ान मुहतरम, तो वो भी तो अज़ीज़ान मुहतरम ज़र्फ ही की बात है ना। वहां भी तो कुरान ही सुनाया गया है ना। जब रास्ते में किसी ने ताना दे दिया था, कहाँ जा रहे हो, कि बस आज पैगंबर को कत्ल करने जा रहा हूँ, आज फैसला ही किए देता हूँ। कहा पहले अपने घर की खबर लो, घर वालों को तो देखो, वो जाकर मुसलमान हो गए हैं, पलट कर गए। तो मालूम यहाँ रोक कर जुमला कह रहा हूँ, अरब की मेंटेलिटी का, अरब की ज़हनियत का, अरबों की तंग नजरी का, बद्दुओं की तंग नजरी का आपने अंदाजा कर लिया कि अगर बद्दुओं की नजर में किसी शख्स के खानदान में कोई ऐब होता था तो वो रास्ता चलते ताना दे दिया करते थे, ताना देने से बाज नहीं आया करते थे। उनकी नजर में चूंकि खानदान में किसी का मुसलमान होना ऐब हो गया था, इसलिए अरब ने ताना दे दिया ना, वहां कहां कत्ल करने जा रहे हो, पहले घर वालों की खबर लो, वो रिश्तेदार मुसलमान हो चुके हैं तो तस्लीम किया ना आपने अरब की मेंटेलिटी को कि अगर घर में अरबों की नजर में कोई बात ऐब की हो तो वो ताना जरूर दिया करते थे। अरे मेरे मौला ने जिस काफिर के मुकाबले में भी अपना तारुफ कराया तो यही कहकर कराया, अना अली जबना अबी तालिब, मैं अबू तालिब, मैं अबू तालिब। नहीं दोस्तों, ऐसे बिखरा बिखरा नारा नहीं, इकट्ठे और मुश्तमा पूरी ताकत से। अली ने अपना जहां कहीं भी तारुफ कराया है ना, मकाम फख्र पर हर काफिर के सामने कहा, मैं अबू तालिब का बेटा, मैं अबू तालिब का। अब देखो आपके ज़ौक़ के अदबी का इम्तहान है इस जुमले में, अदबी ज़ौक़ का। ये जुमला मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन अदबी ज़ौक़ का एक जुमला दे रहा हूँ, चूँकि सारे अहले इल्म दोस्त और हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उनकी मौजूदगी में मैं ये जुमला कह रहा हूँ। अली ने जहाँ कहीं भी मकाम फख्र पर गुफ्तगू की है, ऐसा वहाँ यही कहा है, मैं अबू तालिब का बेटा, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। भाई ये तो कुल्लिया है, उसूल है कि नामवर बेटे कभी बदनाम बाप का तारुफ नहीं किया। अल्लाह 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 पूरी ताकत और तवानाई से सलामत रहें। खूबसूरत अंदाज में, मेयारी अंदाज में आप गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे हैं। दोस्तों, नामवर बेटे कभी कम नाम या गुम नाम या बदनाम, अब कितने लोग इस्तेमाल करें, उनका नाम नहीं लिया करते,
और वो भी दुश्मन के सामने नाम ले, ताकि फौरन ताना दे, किसका बेटा होने पर फख्र कर रहे हो, वो भी मुझे ऐसा था। तवज्जो तवज्जो जरा, किसका नाम ले रहे हो, किसका नाम ले रहे हो, किसका बेटा होने पर फख्र कर रहे हो, वो भी मुझे ऐसा था। किसी काफिर ने नहीं कहा दोस्त। हालांकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जंग और मोहब्बत में तो सब जायज है ना, जो भी आए, राइट लेफ्ट उल्टा सीधा सब जायज होता है ना जंग में। तो चाहिए था ना, कोई काफिर तो कहता अली को, कोई काफिर तो कहता किसके बेटे होने पे फख्र कर रहे हो। कहा जंग में तो अपना तारुफ करा, तो मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। काफिर तो काफिर, मरहब अंतर हारिस, चलो ये तो काफिर थे, ये तीनों तो काफिर थे, मरहब अंतर हारिस तो है ना, ये तो थे ही काफिर। वो जो कुल्ले कुफ्र बन के आया था, वो जो कुल्ले कुफ्र बन कर आया था, उसके मुकाबले में भी अली ने यही तारुफ कराया, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। दोस्तों कुल्ले कुफ्र है, कुल्ले कुफ्र है, लेकिन अली के कौल की न तरदीद करता है न ताना देता है। ये नहीं कहता किसके बेटे होने पर फख्र कर रहे हो, माज़अल्लाह तुम्हारा बाप भी काफिर था। कुल्ले कुफ्र नहीं कहता, कुल्ले कुफ्र अबू तालिब को काफिर नहीं समझता। खुदा के लिए गौर करो जो मैं जुमला कह जा रहा हूं दोस्तों। कुल्ले कुफ्र है, मगर वो अबू तालिब को काफिर नहीं समझता। तो फिर तस्लीम करो कि कुफ्र और ईमान किसी की पेशानी पर नहीं लिखा हुआ, इसकी हरारत किसी के माथे पर नहीं है, नब्जों से नहीं पहचानी जाती, ये तो कैफियत से खुद पता चल जाता है। वो कुल्ले कुफ्र है, मरदूद है, मलून है, लेकिन फिर भी अबू तालिब को काफिर न समझता है न कहता है। मगर इन लोगों को क्या करें कि जो अपने आप को कलमा गो भी कहते हैं और अबू तालिब को काफिर भी कहते हैं, तो उनका अंजाम तो कुल्ले कुफ्र से भी बदतर है। तवज्जो है ना, मैं यार तो फिर याद कर, आप चूंकि सारे अहले इल्म हज़रात हैं, कतन ख्याल न करें, मैं मौजू से एक लम्हे के लिए बाहर नहीं हूं, यहीं से मैं सूरह हमद पर आ रहा हूं। लेकिन ये सारा बैकग्राउंड समझाना जरूरी था, वरना बात समझ में ना आती है। जाना मतलब नतीजा खुद ब खुद सामने आ रहा है। पूरी तवज्जो बस आपसे फरमा ले, और जहां नतीजा आ गया वहीं मैं गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा, ज्यादा जहमत मैं आपको नहीं दूंगा। मगर इस जुमले पर जरा सी अगर एक लम्हे के लिए तवज्जो फरमाए तो वो ये है कि ये सूरह जहां से शुरू हुई वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जो दो जहान का पालने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। दोस्तों मैं बाकी बातें तो शाम की मजलिस में मैं अर्ज करूंगा इंशाल्लाह। मैं तो कहा आपके फंस गया, हाँ ये फोटो स्टूडियो के सामने वहां मैं अर्ज करूंगा। लेकिन जरा सा ये जुमला आप नोट करते जाए, मेरे ख्याल से नौजवान दोस्तों के लिए अजीब और नई बात होगी। आपने आज तक उलमा इकराम से ये ही खुतबा सुना होगा कि जनाब खदीजतुल कुबरा और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आपने सबसे सुना होगा कि जब जनाब अबू तालिब ने इनका अद्ब पढ़ाया है और खुतबा अद्ब पढ़ा है तो जनाब अबू तालिब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम व ज़र इस्माईल। हम तो सना है उस खुदाए लम यज़ल ला यज़ाल के लिए कि जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम में कायम किया, जिसने हमें नस्ल इस्माईल से ज़ाहिर की सलावत दे देना। भाई मैं यहाँ जुमला रोक कर चैलेंज करके ये बात कहता हूँ कि पहले तो पूरे अरब के शजरे को उठाकर देख जा। बनी उमय्या और बनी अब्बास के जालिम बादशाहों ने जिन्होंने तारीख को उलट पलट कर चीस्तान बना दिया है, जो किसी सही आदमी की समझ में नहीं आती। जितनी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है ना बादशाह के जमाने में,
میں تو بڑا ہنستا ہوں جب لوگ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. بھائی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہو؟ ان خچروں کے خلاف باتیں کرو نا جنہوں نے یہ شروع کی تھی. توجہ ہے نا؟ جو بادشاہوں کے روپ میں تمہارے سروں پر مسلط رہے ہیں. صلوات علی بابا کے برکت محمد. I'm going to prove it. دوستو, this is not a joke. This is the impact of history. یہ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے. میں اسے ثابت کروں گا. کسی بھی مجلس میں آپ مجھ سے پوچھے کہ ہارس ٹریڈنگ کہاں سے شروع ہوئی. اب یہ ہے کہ خچر ترقی کر کے گھوڑے بن گئے. بس پہلے یہ ٹریڈنگ خچروں میں ہوا کرتی تھی. خچر کو پتہ نہیں ASS کہتے تھے, کیا کہتے تھے. یہ کاہے کا آگے چل کے مخفف بن گیا ہے. اللہ اللہ صلوات بھیج دینا پھر محمد علیہ محمد کا. لیکن یہ ہاں یہ خچروں کی جو دوستوں ساری ٹریڈنگ پہلے اس پہ ہی ہوتی ہوئی ہے. لیکن میں اگر اس کی دلیل ابھی فوراً تاریخ سے دوں تو بات ایک دم مصائب کی طرف چل جائے گی. ورنہ میں اس پر محکم ترین دلیل رکھتا ہوں. میں پاس کروں گا کسی مجلس میں انشاءاللہ. لیکن بہرحال خچر کی ترقی یافتہ شکل ہے گھوڑا, جیسے چور کی ترقی یافتہ شکل ہے بادشاہ. چور کی ترقی یافتہ شکل ہے بادشاہ. وہ چور جو چوری کرنے کے بعد پکڑا نہ جائے. آواز دیتے ہیں آپ, ہم کہہ چکے ہیں بہت بڑا جملہ. وہ چور جو چوری کرنے کے بعد پکڑا نہ جائے. کسی نے لوہا چوری کیا مثال کے طور پہ, بات جو ہے نا, اچھا اس کے بعد وہ نہیں پکڑا گیا, قانون کی زد میں نہیں آیا, قانون کی زد میں نہیں آیا, لے دے کے چھوٹ گیا, یا یہ کہ کسی بھی طریقے سے وہ قانون کے حوالے نہیں ہوا, حوصلے بڑھے اور ترقی کی. پہلے چھپ کر چوری کرتا تھا, پھر اعلان اعلان کرنا شروع کر دیا, پھر اعلان اعلان کرنا شروع کر دیا, پھر دن میں شروع کر دیا, پھر اس کے بعد اس نے ڈاکے مارنے شروع کر دیے. پہلے پھر اکیلے اکیلے ڈاکے مارے, پھر اپنا ایک گروہ بنا لیا, ایک اتحاد بنا لیا. توجہ ہے نا. پھر آس پاس کی بستیوں کو لوٹنا شروع کر دیا. اب ترقی یافتہ شکل دیکھے, چوری سے کہاں شروع ہوئی تھی بات, پہنچی کہاں تک. تو اسی طرح چور کی بہرحال اس تفصیل میں نہ جائے, چور کی ترقی یافتہ شکل ہے بادشاہ. اسی لیے اسلام میں بادشاہ حرام ہے. صلوات جناب محمد علیہ محمد. اسلام میں بادشاہ, اسلام میں بادشاہت, ملوکیت, میراکز, امپیریلزم, شخصی حکومت, مطلب قرآنیت, آمریت, یہ سب ایک ہی نام ہے. چہرے بدلنے سے نظام نہیں بدلا کرتا. توجہ ہے نا. اور ساری خرابیاں جس تاریخ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو تاریخ لکھوائی ہے یہ تاریخ تھا بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم بادشاہ پوری اپنی بادشاہت کے باوجود بھی اپنے لیے ایک خطبے کا ایک جملہ نہیں لکھوا سکے کہ ہم ذریت ابراہیم میں ہیں, ہم نسل اسماعیل میں ہیں. چیلنج کر رہا ہوں میں, کہنا صرف یہ چاہتا تھا. اور ابو طالب نہ جس کی حکومت رہی, نہ جس کے بیٹے کی حکومت رہی, نہ جس کے پوتے کی دنیاوی حکومت رہی, نہ اس کے خاندان کی دنیاوی بادشاہت قائم رہی, لیکن اس کا جملہ تاریخ میں آگے کہ حمد و ثنا ہے اس خدا لنجت اللہ جلال کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قائم کیا, جس نے نسل اسماعیل سے ہمیں ظاہر کیا. ہمیں پیدا کیا ذریت ابراہیم میں, ہمیں پیدا کیا ذریت ابراہیم میں. اور آج جو بیٹے سارے مسلمان یہی دعا کر رہے ہوں گے درود ابراہیم پر, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم آل ابراہیم آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بڑی عجیب منزل ہے. پروردگار آل محمد پہ ایسا ہی درود بھیج جیسا کہ تو نے درود و سلام بھیجا تھا ابراہیم پر اور ذریت ابراہیم پر. ابو طالب کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم, حمد و ثنا اس خدا کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں پیدا کیا. میرے مسلمان بھائیوں, سوچ سمجھ کر درود بھیجنا. جسے کافر کہہ رہے ہو اسی پر درود بھیج رہے, اسی پر درود بھیج.
उसी मंजिल पर आ रहा हूँ दोस्तों, यहाँ ये बात निभाते हुए जहाँ से आगाज कलाम किया था, और बाकी बात इंशाल्लाह करूँगा शाम में फिर रात में, जब तक भी हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आज करता जाऊँगा। लेकिन ज़रा सा एक मसले पर जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया है, कम अज़ कम मिल्लत मुस्लिमा कुरान मजीद के पहले सूरे की पहली आयत के मफ़हूम को तो समझ ले। जो कहना चाहता हूँ वो सिर्फ ये है, पहली सूरत की पहली आयत, और इतनी वाजिब सूरत कि जिसके बगैर कोई वाजिब अदा नहीं होता। मुझे नहीं पता क्यों अली ने कहा था इब्न अब्बास, हैरान क्यों होते हो? बोला हैरान ना हूं, 7 आयतें हैं इस सूरत में, और सारी रात हो गई है आपको सूरह हमद की तफसीर बयान करते हुए। नमाज सुबह का वक्त आ गया है मौला, सूरह हमद की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। कहा मैं कुर्बान हो जाऊं अली के, खुदा की कसम अली को इसीलिए अली मानता हूं कि अली ने कहीं भी नहीं कहा कि ये मेरा इल्म है, हर जगह कहा ये मेरे रसूल का सदका है, ये मेरे रसूल का सदका। तलवार पे देना मोहम्मद आए, उनकी शराबत को देखकर अली ने कही दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक मसले पे और फरमा ले इब्न अब्बास, जो कुछ पूरे कुरान में है ना वो सूरह हमद में, जो सूरह हमद में है वो बिस्मिल्लाह है, जो बिस्मिल्लाह में है वो बे में है, जो बे में है वो नुक्ते में है, जो नुक्ता है वो मैं हूँ। कितनी आसान ज़बान में सारा कुरान समझा दिया जाने वगैरह। 1400 बरस पहले अरब के बद्दुओं को क्या पता था कि अली साइंस के किस सरबस्ता राज से पर्दा उठा रहे हैं। आज आपकी सारी कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड, आपकी सारी साइंसी तरक्की, आपके सारे कंप्यूटर इन्हीं डॉट्स और नुक्तों ही पर तो चल रहे हैं। सलावत भेजना, इन्हीं डॉट्स और नुक्तों पर चल रहे हैं, सिमट के सलावत भेजना, महफूज हो जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। इस जुमले पर और गौर फरमा लें जाने मोहतरम कि ये जुमला सब कहते हैं। मैं इस सूरह मुबारका की पहली आयत का पहला हवाला देकर आज की मजलिस मुलतवी कर रहा हूँ। शाम की मजलिस पर बाकी तफसील इसकी इंशाअल्लाह अर्ज करूँगा दूसरी मजलिस में। इस अमर पर आप तवज्जो फरमा लें कि ये खुतबा तो आपने सबसे सुना होगा कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, जनाब पैगम्बर इस्लाम और जनाब खदीजतुल कुबरा के अक़्द के मौके पर जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र इस्माईल। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, मैं तो तारीख़ सग़ीर में पूरी तवज्जो इस जुमले पर, तारीख़ सग़ीर हमारा ज़हन में रहे। और तारीख़ सग़ीर ये मुख्तसर सी तारीख़ है जो उन्होंने लिखी है जिन्होंने सही बुखारी लिखी है। हवाला इसलिए मेरा जरूरी है कि जिनकी हदीसें इतनी मोतबर हैं मिल्लत की निगाह में, जनाब मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी जिनकी रिवायतें इतनी मोतबर हैं, उन्होंने तारीख़ सग़ीर में क़यामत बर्पा कर दी। ये जुमला लिख कर जब वो तारीख़ लिखते आ रहे हैं अरब की, तो कहते हैं कि इसकी बात न करो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का खदीजतुल कुबरा से अक़्द पढ़ाते वक्त पैगम्बर ने क्या कहा, बल्कि अपने अक़्द के मौके पर अजीब राज से पर्दा उठा रहा। और यहीं से नतीजा आ जाएगा, अगर आप एक लम्हे के लिए भी इधर उधर हुए ना और ज़हनी तौर पर बिला फसल न रहे मुझसे, मेरी सारी 1 घंटे की मेहनत खत्म हो जाएगी। और अगर बिला फसल रहे, आपको खूबसूरत नतीजा देकर इंशाअल्लाह आप यहाँ से जाएंगे। तारीख़ सग़ीर में जुमला लिखते हैं, जनाब खदीजतुल कुबरा के अक़्द के मौके पर नहीं, अबू तालिब ने फातिमा बिन्ते असद से अपने अक़्द के मौके पर अपना खुतबा अक़्द खुद पढ़ते हुए, जनाब फातिमा बिन्ते असद से आप गौर फरमाएं दोस्तों,
तारीख सगीर का जुमला, अपना खुतबाया फातिमा बिनते असद से खुद पढ़ते हुए जो खुतबे का आगाज किया था, वहां तो लफ्जें भी नहीं बदली, बेसाख्ता अबू तालिब ने अपने अक़द के मौके पर अपने खुदा के लिए जाग के सुन लेना, मेरी पूरी मेहनत का नतीजा है। जनाब अबू तालिब ने बिनते असद से अपने अक़द के मौके पर अपने खुतबे का आगाज इन जुमलों से किया था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अबू तालिब कब कह रहे हैं? अपने अक़द के मौके पर, उस जमाने में कि अभी तो पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए, अभी तो कुरान नाजिल भी नहीं हुआ, अभी तो कोई किसी का बाप भी मुसलमान नहीं हुआ था। जब अबू तालिब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के लफ्ज़ अपनी जबान पर जारी कर रहे थे, अबू तालिब की जबान से निकला हुआ ये लफ्ज़ मशीयत को इतना पसंद आया कि मशीयत इलाही ने अबू तालिब की जबान से निकले हुए इस लफ्ज़ को लौहे महफूज का मुकद्दर बना के सूरह हमद का सरनामा बनाकर हर नमाज में हर नमाजी पर सूरह हमद को पढ़ना वाजिब करार दे दिया कि अबू तालिब को काफिर समझने वाले मुसलमानों, तुम्हारी कोई नमाज उस वक्त तक कबूल ही नहीं करूंगा जब तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर अबू तालिब की सुन्नत पे अमल नहीं करूंगा। यह है नमाज। बहुत शुक्रिया। नमाजी की हम नमाज़ें कबूल नहीं करेंगे जब तक वो अबू तालिब की सुन्नत पे अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ने। मैं कुर्बान ना हो जाऊँ ऐसे काफिर पर, मैं कुर्बान ना हो जाऊँ भाई जाऊँ साहब, मैं कुर्बान ना हो जाऊँ। वो कहाँ वापस आ गया। नमाजी की नमाज है, अबू तालिब की औलाद पे दुरूद ना भेजो तो नमाज कबूल नहीं होती। तो जब अल्लाह की इबादत अबू तालिब और उसकी औलाद के बगैर मुकम्मल नहीं होती, तो ये सारी शरीयत कौमी असम्बली में बैठकर अली के बगैर तवज्जो हाँ बिस्मिल्लाह खोलोगे तो सुनाओ जी सलमान। सुन्नत भी ईमान क्या हमारे सीने का दागे मातम निशाने हैदर से कम नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद आले है ना, तवज्जो है ना। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको ये जज्बा है ना ईमान का कि जहाँ एक ही मंजिल पर ज़हन आते हैं और हर मंजिल का नतीजा, मैं कहता हूँ ना कि ये मजलिसें हमारी वो दरसगाह है कि जहाँ मयारे इल्म किताबें और डिग्रियां नहीं है, अली की मारिफत और खून की शराफत है। खून की शराफत मयारे इल्म ये है। मैं उसी मंजिल पर कह रहा हूँ, मयारे इल्म किताबों के अंबार और डिग्रियों के अंबार नहीं है। लोग डिग्रियों के कफन पहनकर भाई, मैं आप अंदाजा नहीं कर सकते कि भाई जाफर अली मीर जानते हैं, तमाम दिन कल मजालिस पढ़ी हैं, तमाम रात मजालिस पढ़ी हैं। सुबह 6 बजे आखिरी मजलिस पढ़कर 7:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचा हूं और 7:30 बजे से इंतजार करते करते 11:15 बजे मैं लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा हूं। 36 घंटे से ज्यादा मुझे मजालिस पढ़ते हुए और जागते एक लम्हे के लिए पलक नहीं झपकी। आवाज का जो भी हश्र है वो है, लेकिन ये इन मोजज़ों को जो अली अता करते हैं, जो ताकत, इन्हें सिर्फ जाकिर महसूस करता है। तवज्जो है ना इज़ार मोहतरम। इसलिए जरा सा आप इस जुमले पर तवज्जो फरमा लें। रात जब इन्होंने 5 बजे मुझे जाफर भाई ने फोन किया घबरा कर, मुझे 5 बजे मैं पहुंचा था कोई 6ठी मजलिस पढ़कर, 7वीं पढ़ने जा रहा था।
कहने लगे मैंने 5 बजे अभी मेरी आंख खुली, मैंने घबरा के इसलिए फोन किया कि तुम आज रात फोन ही नहीं किया, सुबह की प्रोग्राम। मैंने कहा जी मैं आया बस एक मजलिस पढ़ के एयरपोर्ट जा रहा हूँ सीधा। तो मैंने इन्हें अब आप इससे अंदाजा कर लें कि उस वक्त मेरी हालत क्या थी और इनकी हालत क्या थी। इतने परेशान थे और इतनी एहसास जिम्मेदारी की बात थी। बात जिम्मेदारी की है, हमारे बुजुर्ग भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन दोस्तों इस जुमले पर हम तवज्जो चाहते हैं, हजारों डिग्रियों के कोई कफन पहन कर आ जाए। मैंने अगर जुमला कहा है तो ये जोश खिताबत का जुमला नहीं है, इसके पस मंजर में अली के आस्ताने से ली हुई भीख के तमाम जौहर हैं। लाख कोई डिग्रियों के कफन पहनकर आ जाए, हम उसे आलिम नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ पैमाने इल्म न स्कूल है, न कॉलेज है, न मदरसा है, न असनाद है, न डिग्री है, न अरबी है, न फारसी है, न इल्म सर्फ है, न इल्म नहव है, न इल्म फलसफा है, न इल्म तैर है, न इल्म हैयत है, न इल्म मंतिक है, न इल्म कीमिया है, न माशियात है, न सियासियात है, न समाजियात है। ये तमाम उलूम हमारे यहाँ मयार इल्म नहीं है। हमारी नजर में आलिम तो नहीं है जो 1001 डिग्रियां इल्म की अपने पास रखता हो। हमारी नजर में आलिम वो है जो एक जमात ना पढ़ा हुआ हो मगर अली के इल्म की मारिफत रखता हो। तवज्जो है ना, बाबे इल्म की मार सलावत भेजे ना मोहम्मद। बाबे इल्म की मारिफत रखे, अगर इल्म बाबे इल्म की मारिफत नहीं कराता तो वो इल्म तो नहीं है, वो तो फिर अबू जहल के शेर हैं, वो तो अबू जहल के कसीदे हैं। फिर वो भी बड़े अच्छे अच्छे कसीदे होते थे साहब, सब मौलक़ात में उनका शुमार होता है। अरबी लिटरेचर का शाकार हैं अबू जहलों के नजदीक अब भी। अल्लाह की रसूल अपने मिजाज की बात है ना भाई। अबू जी इस दौर के अबू जहलों के नजदीक अभी भी अरबी अदब का शाहकार कहलाते। अब मुझे बताएं आप उन अरबों से खैर की तवक्को कि जिन अरबों का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी अबू जहल हो, तो उनका बेपढ़ा लिखा आदमी कैसा होगा। जिनके पढ़े लिखे आदमी का लक़ब अबू जहल हो तो फिर वो तो रसूल को अनपढ़ ही कहेंगे ना। तवज्जो है ना, आखिर अबू जहल से कुछ तो आएगा। लेकिन जिन्होंने बाबे इल्म पर अपनी जबीनें झुकाई हैं वो ये कहेंगे कि हम अगर कहते हैं कि अली का इल्म ऐसा तो घबराया मत करो, हम बताते सिर्फ ये हैं कि जिस नबी का अली ऐसा है उस अली का नबी कैसा है, जिसका शागिर्द ऐसा है उसका उस्ताद कैसा होगा, जिसका जुज़्व ऐसा है उसका कुल कैसा होगा, जिसका दर ऐसा है उसका शहर। तवज्जो है ना, सलावत मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद। लोगों का भी कोई कसूर नहीं है। लोग कह देते हैं ना, आप बढ़ा देते हैं, आप नबी को भी बहुत बढ़ा देते हैं, अली को भी बहुत बढ़ा देते हैं। नहीं मेरी जान, हम नहीं बढ़ाते, आपका कसूर नहीं है, आप घटा इतना देते हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाए ना, आप घटा इतना देते हैं कि जरा सी फजीलत भी आपको बड़ी हुई नजर आती है। अब हम क्या करें, जाहिर है कि जब आप नबी को घटाते घटाते बगैर आईना देखे अपने जैसा कहेंगे। हाँ जी, बगैर आईना देखे जब आप नबी को बगैर आईना देखे, आईना आप देख नहीं सकते, आपकी मजबूरी है। ये भी पैदाइशी, कुछ मजबूरियां ही पैदाइशी होती है, उसमें आदमी ही कांट हेल्प, कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों आप यकीन करें, आईना देख नहीं सकते, पैदाइशी मजबूरी, सारी उम्र आईना नहीं देखेंगे। अब जब आईना नहीं देखा तो शक्ल नजर नहीं आई, तो शक्ल जब देखी नहीं अपनी तो कह दिया नबी भी हम जैसे हो। जिस दिन भी देख लेंगे उस दिन नहीं कहेंगे। अल्लाह अल्लाह, गौर कर ले, गौर कर ले। लेकिन देख नहीं सकते, हमें पता है नहीं देख सकते, हम जानते हैं।
نہیں دیکھ سکتے, مجبوری ہے. اس لیے کہ آئینہ دیکھیں گے تو آئینے میں اپنی شکل نظر آئے گی, اصل تو نظر نہیں آئے گی نا, اس کی نقل نظر آئے گی نا, شکل نظر آئے گی. شکل کو شریعت اور عربی زبان میں شبیہ کہتے ہیں, اور شبیہ دیکھنے سے نگاہ ٹوٹ جاتا ہے. توجہ ہے ناظرین محترم, دیکھیں کیسے آئینہ حیدری. کمال ہے صاحب, کمال ہوا صاحب. نکاح نہ ہوا, پاکستان کی قومی اسمبلی ہو گئی. چاہے جب ٹوٹ جائے. سوچا کریں, غور کیا کریں, تدبر کیا کریں, تفکر کیا کریں. کیوں اللہ کے قوانین کا خود مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ کے قوانین ازلی اور ابدی ہیں, اس کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ اپنے قوانین کو 2/3 میجورٹی سے پاس نہیں کیا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو 2/3 میجورٹی سے پاس ہو وہ قانون شریعت نہیں ہوتا. وہ چاہے 200 آدمی اسمبلی میں بیٹھے ہوں یا 220 بیٹھے ہوں یا 420 بیٹھے ہوں, اٹ میکس نو ڈیفرنس. علامہ اقبال کہہ چکے ہیں, گریز از طرز جمہوری غلام پختکار جو کہ از مغز دو صد خار فکر انسانی نمی آیا. گریز کرو اس طرز جمہوریت سے اور کسی علی جیسے پختہ کار کے غلام ہو جاؤ, اس لیے کہ 200 گدھے مل کر بھی فکر انسان پیدا نہیں کر سکتے. اللہ, یہ علامہ اقبال کہہ گئے. کیا از مغز دو صد خار, 200 گدھے, 200 گدھے. علامہ اقبال کو کتنے عرصے پہلے پتا تھا کہ گدھوں کی انجمن بھی بنے گی. مصور پاکستان تھے نا, مصور پاکستان تھے نا جانے محترم, اور پھر علی کے آستانے پر جھکے ہوئے تھے. سارا اقبال ملا تھا اسی در سے, جبھی تو جھوم کر کہا تھا فیض اقبال ہے اسی در کا, بندے شاہ لاپتہ ہوں میں, بندے شاہ لاپتہ ہوں میں. اے اپنے ضمیر اور ذہن اور دل کی ساری سیاہی سفید سفید چاندی جیسی دیواروں پر انڈیل کر دیواروں پر کافر کافر لکھنے والوں, علامہ اقبال کہہ رہا ہے بندے شاہ لاپتہ ہوں میں. ہم غریبوں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم بھی سمجھے کسی ماں کے لال ہو. اقبال کی قبر پہ جا کر کہو کافر کافر, اقبال کافر. ہم بھی سمجھے کوئی پیمانہ ہے, اگر معیار ہے تو پھر یہ مقرر کرو. تو میں عرض یہی کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے, فہم القرآن کے لیے ان وارثان قرآن کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے قرآن کی آیتوں کو زبان عطا کی, صورتوں کو زندگی عطا کی, قرآن کے چہرے کو وقار عطا کیا, صداقت عطا کی, معجزہ رسالت کو دوام عطا کیا. لوگ کہتے ہیں صاحب ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں. پڑھیے پڑھیے, ضرور پڑھیے, کون منع کرتا ہے. سب آپ بھی پڑھا کریں نا. یہ عاشور کے دن آپ ماتم کرتے ہوئے, پیٹتے ہوئے, زلجنا لے کر, علم لے کر آپ باہر نکل آتے ہیں. عاشور کے دن آخر ہم بھی تو ہیں شریف لوگ, گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. میں نے کہا کیوں پڑھتے ہیں قرآن عاشور کے دن؟ ارے سیدنا امام حسین کو بخشتے ہیں. اللہ تمہیں کبھی نہ بخشے. اور امام حسین کو قرآن بخشتے ہیں. میں نے کہا امام کو قرآن بخشتے ہو؟ ہاں صاحب دیکھیں قرآن پڑھ پڑھ کر ان کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں. ہم قرآن, میں نے کہا قرآن بخشو اپنے مردوں کو,
हुसैन को बड़ी तवज्जो, कुरान बख्शो अपने मरने वालों को, इसलिए कि तुम्हारा मुर्दा मरने के बाद तुम्हारा मोहताज है, ना अपनी नमाज पढ़ सकता है ना अपना कुरान पढ़ सकता है, इसलिए मुर्दे की नमाज भी कोई और पढ़ता है, उसका कुरान भी कोई और पढ़ता है। हुसैन को कुरान का सवाब बख्शने की जरूरत क्या है? अपने मुर्दे के लिए कुरान पढ़ो। हुसैन को तुम्हारे कुरान की जरूरत नहीं है, हुसैन तो खुद नो के नेजा पे कुरान पढ़ रहा है। कुरान उनके लिए पढ़ा जाता है जो मरने के बाद कुरान न पढ़ सके, और जो लोग के नेजा पर खुद कुरान पढ़ रहा हो, चाहे इसीलिए कुरान पढ़ रहा हो कि लोग इस मोजज़े को देखें, सब मेरे सर की तरफ देखें, ये 2 लाख नामहरम नजरें मेरी ज़ैनब के खुले सर की तरफ न जाए। जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। सफर का महीना शुरू हो चुका है ना शहजादी ज़ैनब का, मौला आपको कोई गम ना दे, आप तो पहुंच गए एक लम्हे में। हुसैन नेज़े पर कुरान पढ़ रहे हैं, सब मेरे सर की तरफ देखो, देखो मेरी ज़ैनब के खुले सर पे नजर न डालो। मौला हुसैन, मैं आपकी गैरत के कुर्बान, मौला शहादत के बाद भी ज़ैनब का खुला सर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाय मेरा सैयद सज्जाद, अल्लाह जाने करबला से शाम तक खुले सर माँ बहनों के काफिले को कैसे ले गया। खुले सर माँ बहनों के काफिले को अल्लाह जाने किस तरह ले गया। अजीजान मोहतरम, वो सज्जाद के जिसने 2 बरस गुजारे थे अली के जमाने में, 2 बरस के थे सैयद सज्जाद मौलाए कायनात की जिंदगी में, और जब मौलाए कायनात को जरूरत लगी है तो वसीयत की थी, मेरे सज्जाद का ख्याल रखना, बेटा हसन तुम भी, बेटा हुसैन तुम भी, इसलिए कि बड़ा गैरत वाला है, माँ की तरफ से भी शहजादा है, बाप की तरफ से। मौला माँ की तरफ से भी शहजादा है। बड़ी मकबूल मजलिस हो गई है भाई, 2-4 जुमले बस काफी होते हैं मसाइब के लिए, कोई जरूरी नहीं होता तफसील से मसाइब पढ़ना। अगर सिर्फ इतना सोच ले कोई इस मजलिस में बैठे बैठे कि धूप में मजलिस है मगर शामियाना तो है, ठंडे पानी का एहतमाम तो है, ठंडे पानी का एहतमाम तो है। अदादारों अरबों की रिवायत ये थी कि अरब के काफिले जब सफ़र किया करते थे तो अरब की गर्मी की वजह से वो दिन में आराम किया करते थे, रात को सफ़र किया करते थे, मगर आले मोहम्मद के लुटे हुए काफिले को 11 मुहर्रम को जब शिमर मलून करबला से शाम की तरफ लेकर चला है तो अदादारों उसने अरब की रिवायत बदली है। मुसलमान जहरा की बहू बेटियों को दिन में सफ़र कराया करते थे, रात को काफिला मंजिल लिया करता था। तपती हुई धूप, झुलसता हुआ सहरा, फातिमा की बेटियां, 18 भाइयों की बहन ज़ैनब व कुलसूम, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गर्दन में तौब, कमर में लंगर, 1 रसन, 12 गले, सबसे आगे 4 बरस की सकीना। क्या सुन रहे हैं आप अदादारों? मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अदादारों पता है सैयद सज्जाद की हाथों में लोहा की हथकड़ियां थी ना, पाँव में बेड़ियां थी, सारा दिन 9-9 मील मेरा मौला पैदल चलता था माँ बहनों के लुटे हुए काफिले को लेकर। पाँव में छाले पड़ जाते थे, लोहा गर्म होकर कभी कलाई जख्मी कर देता था, कभी पाँव जख्मी कर देता था। जब अदादारों शाम होती और काफिला मंजिल लेता, शायद आप बर्दाश्त कर सके ये जुमला, जब शाम होती काफिला मंजिल लेता और छोटे बच्चों को पानी दिया जाता, सारे बच्चे अपना पानी पी जाते, मगर अब्बास का बेटा फजल अपने हिस्से का पानी लेता, लेकर सीधा सैयद सज्जाद के पास आता, आकर सज्जाद की हथकड़ियों पे डाल कर कहता, मौला सज्जाद, सारा दिन की धूप से हथकड़ियां झुलस रही होंगी, ये पानी डाल दूं, शायद कोई आराम आ जाए, मैं सक्के का बेटा हूं ना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसीलिए तो अख्तर चनियोटी मरहूम ने कहा था ना, ये अलमदार का बेटा है।
है ना मशहूर नवा अख्तर का, जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिन्ते ज़हरा सुनो सुनो, जियारत बरामद होगी, ज़ुलजनाह बरामद होगा, शबी बरामद होगी। मजलिस में उसी जुमले पर खत्म करूंगा, मगर पहले ये जुमला रोते रोते सुन लो दोस्तों। ये अलमदार का बिन्ते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है, ये अलमदार का बेटा है, ये अलमदार का बेटा है। भाई पता नहीं आप इस शेर को क्या सुनेंगे। कराची में तो ये शेर कोई बर्दाश्त नहीं कर सका था दोस्तों। तो एक ही शेर, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, कयामत बर्पा हो गई थी इसी शेर पर। ये अलमदार का बेटा है कि पानी जो मिले जाके बीमार की जंजीर पे डालाता है। अरे गाजी का बेटा है ना। अदादारों हम तो रोते रहेंगे, हमारे रोने पे एतराज न करो, हमारे रोने पे एतराज न करो, हम रोते रहेंगे। इसलिए लोग कहते हैं मुहर्रम खत्म हो गया, आप क्यों रो रहे हो? तो तुम भी 10 मुहर्रम के बाद जब हुसैन का सर काट चुके थे अपना जुल्म खत्म कर देते, हम भी रोना बंद कर देते। सवाल बैत तो हुसैन से था, सकीना के तमाचे क्यों मारे? सवाल बैत तो हुसैन से था, सर काट लिया, ज़ैनब कुलसूम की चादर क्यों लूटी? खवातीन बैठी हुई हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी बैठी होंगी। अल्लाह तुम्हारे बापों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे सुहागों को सलामत रखे। आज सकीना को सलाम करके एक जुमला कह दो ताकि ज़ियारत बरामद हो जाए। अदादारों जब हुसैन जाने लगे ना तो सकीना ने एक जुमला कहा है, बाबा बाबा जी बेटा बाबा, अगर रात को घर वापस ना आए लो, एक नया जुमला सुनना मसाइब का। शबी ज़ुलजना उस जुमले पर बरामद होगी जब मैं ज़ुलजना के लिए जुमला कहूँगा, मगर अभी ये पहले जुमला सुन लो। बाबा अगर रात को वापस ना आए तो बाबा मैं किसके सीने पर सोऊंगी? औलाद वाले, बाबा अगर रात को वापस ना आए तो सकीना किसके सीने पर सोएगी? हुसैन कहते, सकीना मेरे लाल, आज के बाद किसी सीने पर सोने की जिद न कर। भाई मजबूर होगा, उसके हाथों में हथकड़ियां होंगी। सकीना कहती, बाबा मुझे तो आपके सीने पर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। कहा, बेटा अगर नींद ना आए तो आज के बाद अपनी माँ रबाब के सीने पर सो जाना, रबाब के सीने पर सो जाना। सुनेंगे आप जुमला? सकीना मासूमियत से कहती है, बाबा अम्मा रबाब के सीने पर तो भैया अली असगर का हक है, असगर को सोना चाहिए। हुसैन कहते हैं, सकीना नहीं, आज से हमने कानून बदल दिया, असगर हमारे पास सोएगा। मातम करो ना दरारो, जरा कर ठहरे, अभी ठहरे ठहरे, अभी ज़ियारत बरामद होगी जब मैं कहूँगा, मगर इस जुमले पर मातम करते हुए तवज्जो करते रहे। सकीना आज से असगर हमारे पास सोएगा, तुम रबाब के पास सो जाना। हुसैन खुदा हाफिज कहकर चले गए, सकीना दरे जिंदान पे तड़पती रह गई। अदादारो मुझे नहीं पता हुसैन करबला में, अभी ठहर जाए ज़ियारत, जब मैं जुमला कहूँ जब बरामद करना। पूछते ज़ुलजना आपस से कैसे तशरीफ लाए? मेरे इमाम ज़माना कहते हैं, मेरा सलाम हो उस शद्दे नामदार पर जिसमें अक़दस वक्त शहादत न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था। हुसैन सजदे में गए और ज़ुलजना से एक जुमला कहा, ए ज़ुलजना ना बताना कैसे गिरा